کیا کبھی اپنے سچے دل سے سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی؟ جب آپ اپنے پیاروں کی آخری آوازیں سنیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے مگر انہیں جواب تک نہیں دے پائیں گے۔ سوچیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارا جسم تو یہیں زمین پر پڑا رہ جائے گا، لیکن ہماری روح ایک بالکل انجانی دنیا، ایک پرسرر عالم کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ قبر کی وہ پہلی رات اور اس کے بعد 40 دن ہم کیا محسوس کریں گے؟ ہم سب میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج ہم مل کر اس راز بھری برزخ کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سفر جو ہم میں سے ہر انسان کو کرنا ہے، اور ایک ہستی کو، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے جس سے آپ سالوں بھاگتے رہے، جسے آپ سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ آخری سانس۔ زبان کچھ بول نہیں سکتی، آنکھیں ایک جگہ جم سی جاتی ہے، دل ایک آخری دھڑکن لیتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ ٹھنڈک پیروں سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، لیکن یہ کوئی معمولی ٹھنڈک نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ روح جسم سے نکلنے والی ہے۔ اس وقت روح پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر ٹانگوں سے، پیٹ سے، سینے سے، اور آخر میں گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب روح حلق تک آ جائے، اس وقت سارا درد، ہر تکلیف ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، جیسے اب کے پورے جسم کو ایک ساتھ چاقوؤں سے کاٹا جا رہا ہو۔ حدیث میں ہے کہ روح شروع میں جسم میں آنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اب اس کا نکلنا بھی اتنا ہی مشکل کر دیا گیا ہے۔ اسی نزا کے وقت اب کے پاس ایک سیاہ شکل والا شخص آتا ہے، شیطان، وہ ملعون جو ساری زندگی اب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اب آخری بار آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، اپنا ایمان چھوڑ دو، یہ پانی لے لو۔ اس لمحے اب کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ نمازیں، گناہ، آنسو، غفلت، توبہ، سب یاد آ جاتا ہے۔ شیطان اپنے پرانے طریقے سے آپ کے کان میں سرگوشیاں کرتا رہے گا۔ کبھی وہ آپ کے مرے ہوئے ماں باپ کی شکل میں آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، کبھی آپ کو کسی اور مذہب کی طرف بلائے گا، لیکن اگر دل میں سچا ایمان ہو تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر زندگی شک ہی شک میں گزاری تھی، ایمان کمزور تھا، تو آسانی سے دھوکہ کھا کر اس آخری لمحے میں بھی اسلام چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ شیطان کے پانی کا پیالہ لے کر آنے کی کوئی صریح حدیث نہیں ہے، یہ تفاسیر میں ایک کمزور روایت کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اسے سن کر توبہ کی اہمیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کا آخری لفظ اللہ الہ الا اللہ ہوگا۔ کافر کی موت کا عالم بہت دردناک ہوتا ہے۔ فرشتے پکارتے ہیں، اے بدبخت روح، نکل جہنم کے عذاب کی طرف، پھر روح کو رگڑ رگڑ کر سختی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جسم کانپ اٹھتا ہے، اندر کے اعضاء الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ جسم روح کو روکنا چاہتا ہے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے اسے زبردستی کھینچ لیتے ہیں۔ اب توبہ کا وقت نہیں، ایمان لانے کا وقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مٹکے سے پانی بہتا ہے، بالکل آسانی سے، اور کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلی ان سے کانٹوں بھری لکڑی کھینچی جائے، رگیں، نسیں سب ٹوٹ جاتی ہے۔ کافر کی روح اسرائیل علیہ السلام لیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے اسے ایک کھردرے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں جس سے دنیا کی سب سے بدترین بو آتی ہے۔ جب وہ اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ہر فرشتوں کے جھنڈ سے گزرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی گندی روح ہے؟ جواب ملتا ہے، اس انسان کے سب سے بارے نام سے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلنے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اس کا نام سنجین میں لکھو، زمین کے سب سے نچلے درجے میں۔ پھر اس روح کو بلندی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن مومن کے ساتھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فرشتے نورانی روپ میں آتے ہیں، چہرے چمکتے ہوئے، باتیں مہربانی سے بھری۔ وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، نکل اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ روح کو ریشم میں لپیٹا جاتا ہے، خوشبودار کیا جاتا ہے۔ جب آسمانوں سے گزرتے ہیں تو ہر فرشتہ پوچھتا ہے، یہ کس کی خوشبودار روح ہے؟
इसके दुनिया के सबसे अच्छे नाम और सिफात बताई जाती है। 7वें आसमान तक हर दरवाजा खिल जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम उनलियन में लिखो। फिर हुक्म होता है, इसे जमीन पर वापस कर दो। मैंने इसे वहीं से बनाया था, वहीं लौटाना है और वहीं से दोबारा उठाना है। मौत के बाद जिस्म जमीन पर रहता है। इसे गुस्ल दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मार्दों को अच्छी तरह गुस्ल दो, क्योंकि रूह अब भी जिस्म से एक अजीब ताल्लुक रखती है। पानी का हर कतरा हर छेवे न रूह महसूस करती है। फिर कफन पहनाया जाता है, एक सादा सफेद कपड़ा बगैर सिलाई का। वो शख्स जो घंटों कपड़े चुनता था, अब सिर्फ 3 कपड़े। जनाजा होता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, फिर कब्र में उतारा जाता है। पहली मुट्ठी मिट्टी की डाली जाती है। आप सुन सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। सब चले जाते हैं। पैरों की आवाज दूर होती जाती है। फिर कब्र हिलती है, दीवारें फटती हैं, मुनकिर और नकीर आते हैं। आंखों में बिजली आवाज में गरज बाल जमीन तक पहुंचते हैं। मैनर बो आके, तेरा रब कौन है? अगर आप मोमिन थे तो पूरे यकीन से कहते हैं, मेरा रब अल्लाह है। मैं न दी आके, तेरा दीन क्या है? आप कहते हैं, मेरा दीन इस्लाम है। और अब तीसरा सवाल, ये सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे खौफनाक सवाल होता है। फरिश्ते कहते हैं, अलिफावंजार, देखो। और अचानक कब्र के अंधेरे में एक नूर फैल जाता है। एक चेहरा मुबारक जाहिर होता है। वो चेहरा जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया। वो चेहरा जिसे देखकर सहाबा रो पड़ते थे। वो चेहरा जो रहमत लिल आलमीन सरवन कायनात मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फरिश्ते पूछते हैं, मया का अंते तकावला फन आयज़िया अल रवेजान, इस हस्ती के बारे में ताव क्या कहता था? क्या तो उन्हें पहचानता है? और अब मोमिन के दिल से आवाज निकलती है। वो रू रू कर कहता है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हक लेकर आए। मैंने उनकी बात मानी, उनकी संग पर चला, उनसे मोहब्बत की, उनके लिए जिंदगी गुजारी। इशे दिन मोहम्मद रसूल अल्लाह, बस यही कलिमा जो दुनिया में पड़ा था अब कब्र में काम आ गया। और अगर कोई मुनाफिक आबेदीन होगा वो हाथ मिलता रहेगा, हाँ, मुझे नहीं पता। लोग जो कहते थे मैं वही कहता था। अगर आपने सही जवाब दिया तो एक नूरानी शख्स आता है और कहता है, मैं तेरे नेक अमाल हूं, तेरी नमाजें, रोजे, सजदे, तेरे आंसू, और वो क़यामत तक तेरे साथ रहेगा। कब्र वसी हो जाती है। जन्नत का झुनका आता है, जन्नत का दरवाजा खिलता है, सुकून ही सुकून। लेकिन अगर जवाब ना दे सके, गफलत में जिंदगी गुजारी, नमाज छोड़ी, तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। जहन्नम का दरवाजा खिलता है, गर्म हुआ और बदबू आती है। एक बदसूरत शख्स आता है और कहता है, मैं तेरे बारे अमाल हूं। फिर 99 जहरीले सांप भेजे जाते हैं जो क़यामत तक काटते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक सांप का जहर जमीन पर गिर जाए तो क़यामत तक वो जमीन पर कुछ भी ना अल्फागी। कब्र में चीखने वाला चीखेगा लेकिन कोई नहीं सुनेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक ख्वाब में अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, मुनकिर नकीर ने हर चीज पूछी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। बरज़ख असल में कब्र का रूहानी आलम है। वहां सूरज नहीं फिर भी नूर से भरा हुआ। वहां मोमिन अपने पहले गुजर चुके प्यारों से मिलते हैं, बातें करते हैं। वहां खाना पीना, सुकून और खुशियां होती है। जन्नत के शहीद अपनी रूह को हरे परिंदों पर सवार करके जन्नत में घूमते हैं। और कभी कभी वो अपने जिंदा प्यारों से ख्वाबों में मिलने भी आते हैं। ये बात अक्सर सुनी जाती है लेकिन इसकी कोई सरी हदीस नहीं है। ये ज्यादातर तफसीरी रवायात में मिलती है। तो जब आप अपने किसी करीबी की कब्र पर दुआ करते हैं और एक परिंदा चहचहा उठता है तो हो सकता है वो उनकी रूह हो जो आपको सलाम करने आई हो। एक रवायत में एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आ रसूल अल्लाह, क्या मरने वालों को एक दूसरे की पहचान होती है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो एक दूसरे को पहचानते हैं जैसे एक ही डाली पर बैठे परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो हाँ, हमारे अपने हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ते। वो बस अपनी कब्रों में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं।
बरज़ख में वक्त दुनिया से बहुत तेजी से गुजरता है। ना उनकी मौत और ना हमारी मौत आखिरी है। रूहों का रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस एक आबाद का पर्दा बीच में आ जाता है। मौत रिश्ते खत्म नहीं करती, बस इसे दूसरी जगह ले जाती है। जिनको अल्लाह इजाजत देता है वो कभी कभी दुनिया में भी जाहिर हो सकते हैं, नेक रूप में चलते फिरते दिखाई देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बन्नू सलीम कबीले का एक जवान मर गया। इसकी माँ बहुत रोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, आ रसूल अल्लाह, हमारे कबीले में एक के बाद एक लोग मर रहे हैं, क्या मैं अपने बेटे बिशर को सलाम भेज सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भेज सकती हो। किस्म इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। भी बन्नू सलीम में कोई मरने के करीब होता, इसके घर वाले कहते, जब तुम बिशर से मिलो तो इसे मेरा सलाम कहना, तो जो अपनों को खो चुके हो उनके लिए याद रखो तुम ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो, तुम्हारा प्यारा बस एक स्टेशन आगे चला गया है। वहां मरने वाले एक दूसरे को पहचानते हैं और मिलते हैं, जैसा एक ही शाख पर बैठे परिंदे मिलते हैं। इस दिन के बाद जब नेटवर्क नहीं है इसलिए बात नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और तुमसे अब भी जुदा नहीं हुए। जो नेक अमल तुम करते हो, सदका देते हो, खुसूसन दीन के लिए जो कुछ करते हो, वो इन तक पहुंचता है और वो खुशी से झूम उठते हैं। हजरत सुफियान सौरी के कजिन ने बताया, जब मेरे वालिद गुजर गए तो मैं बहुत उदास रहता था। रोज कब्रिस्तान जाता था, फिर वक्त गुजरता गया, कम जाने लगा। एक दिन कब्र के पास बैठा था, नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि कब्र खिल गई, वालिद कफन में बैठे हैं। मैंने रोना शुरू किया। वो बोले, बेटा अब आते क्यों नहीं? जब तुम आते थे मुझे सुकून मिलता था। जब तुम दुआ करते थे, न सिर्फ मुझे बल्कि कब्रिस्तान के सारे पड़ोसियों को खुशी होती थी। ये कहानी मुस्तनद नहीं है, बस एक इखलाकी सबक के लिए मशहूर है। ये सूफी कहानियों में से है। तो कब्र में सुकून किसको मिलता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के पास 6 इनाम है। गुनाह मुआफ, जन्नत दुखा दी जाती है, कब्र के अजाब से बचाया जाता है, क़यामत के खौफ से महफूज रखा जाता है, सर पर वकार का ताज पहनाया जाता है, एक याकूत दुनिया से भी बेहतर दिया जाता है, और 72 हुरें और 70 रिश्तेदारों की शफात दी जाती है। एक और हदीस में फरमाया, हर शख्स का नामा अमाल मौत के बाद बंद हो जाता है, सिवाय इसके जिसका दिल अल्लाह की राह में लगा रहा। इसके अमल क़यामत तक बढ़ते रहते हैं और कब्र के फितने से बचा लिया जाता है। तुम्हारी नमाज, तुम्हारे नेक अमाल, तुम्हारे सदक़े, ये सब मरने वालों के लिए दुनिया की हर चीज से कीमती तोहफे हैं। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरी मां गुजर गई, अगर वो बोल सकती तो सदका करती, क्या मैं उनके नाम पर सदका दे सकता हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, हर अपने के लिए है। वो लोग एक स्टेशन आगे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम पहुंचोगे तो वो कहेंगे, जो तुमने भेजा था सब पहुंच गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, कब्र में जब मुनकिर नकीर आएंगे तो क्या हमें वही अक्ल होगी जो अब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल वही। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले, तो फिर कोई डरने की बात नहीं। इसी वक्त आयत नाजिल हुई, अल्लाह मोमिनीन को दुनिया और आखिरत में कलमा साबित से कायम रखेगा। जब तुम कब्र में जाओगे तो वहां एक नई फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, वो तुम्हारे नए घर वाले होंगे। जनाजे की दुआ में हम कहते हैं, ए अल्लाह उन्हें बेहतर घर दे, बेहतर फैमिली दे, बेहतर साथी दे। कुछ उलमा कहते हैं ये बरज़ख के साले रूहों की तरफ इशारा है। कुछ कहते हैं दुनिया वाली फैमिली ही रहेगी, लेकिन सारे गिले शिकवे, गुस्सा, बुराइयां खत्म हो जाएंगी। कुछ कहते हैं जन्नत में अपने और दीन के साथी दोनों साथ होंगे। हर तरह से बात यही है कि रिश्ता कभी टूटता नहीं। हर दुआ, हर सदका, हर कुरान की तिलावत जो तुम उनके नाम पर करते हो, वो इन तक नूर बनकर पहुंचता है। कब्र में गर्मी, रोशनी और सुकून बन जाता है। इंसान के हवास महदूद हैं। बाज 8 गन्ना दूर तक देख सकता है, मक्खी अल्ट्रा वायलेट देख सकती है, बली अंधेरे में हिलती चीजें देख सकती है, कुत्ता दौर से सूंघ लेता है। अल्लाह ने हमें बिल्कुल परफेक्ट हवास दिए हैं, जितना हम से सकते हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्गा बोले तो अल्लाह से भलाई मांगो, इसने फरिश्ता देखा है। जब गधा चलाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, इसने शैतान देखा है। कब्र के अजाब की आवाज हर जानवर सुनता है सिवाय इंसान और जिन के, और अगर हम सुन लेते तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। रूह की भी खुशबू होती है, जब नेक नियत करता है तो मुश्क की खुशबू उठती है, बारी नियत से बदबू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदकार रूह की बदबू बताई तो अपने नाक मुबारक पर हाथ रख लिया। नेक रूह जब उठती है तो फरिश्ते कहते हैं, ये खूबसूरत खुशबू कहां से आ रही है। मरने वाले अपनों के अमल देखते हैं, अगर अच्छे हैं तो खुश, और अगर बारे हैं तो दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसे भी हिदायत दे जैसे हमें दी। इन पहले 40 दिन बहुत अहम होते हैं। रूह कब्र में अकेली डरती हुई लेटी होती है। फिर फरिश्ते आते हैं, तेरे बेटे ने दुआ की, तेरी बेटी ने सदका किया, तेरे सिखाए हुए इल्म पर किसी ने अमल किया। ये ऐसा है जैसे जलती जमीन पर ठंडी बारिश हो। ये जिंदा लोगों के लिए भी सबक है। एक दिन हम भी कब्र में होंगे, कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा। मौत के बाद 3 चीजें हमेशा फायदा देती हैं, सदका जारिया, नफामंद इल्म और नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। कब्र में जब रूह डरती होती है और फरिश्ते कहते हैं, तेरे बेटे ने दुआ की, कब्र नूर से भर जाती है। कब्रों की जियारत करो, ये आखिरत की याद दिलाती है। सूरा अल मालिक कब्र के अजाब से बचाती है। जो ये सूरा रोज पढ़ता था, अब उसकी कब्र में वो सूरा पहरा दे रही है। सूरा सुने, सूरा फातिहा, सूरा इखलास। हर आयत कब्र में रोशनी बनकर उतरती है। जो गुनहगार कब्र में जाता है, इसके सामने पर्दा उठाया जाता है, देखो ये दुनिया थी जिसके पीछे तुम भागते थे, अब ये जन्नत थी जो तुमने खो दी। और फिर दूसरा पर्दा उठाया जाता है, तुम्हारा माल अब दूसरों के पास है, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, तुम्हारे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। आवाज आती है, कुछ भी साथ नहीं गया, और सबसे बड़ी खैरात थी तुम्हारी उम्र, वो अल्लाह की राह में ना गुजरी तो क्या फायदा। अमीर हो या गरीब, कब्र में सब बराबर है, सिर्फ अमल काम आएंगे। ए अल्लाह, हमें ऐसा मरना नसीब करके कब्र रोशन हो, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, हमारी कब्र जन्नत का बागीचा बन जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें देख रहे होते तो क्या कहते? जिंदगी एक स्टेज है, मौत के बाद ऑडियंस में बैठना है। फरिश्ते रसूल अल्लाह अपने जो पहले गुजर गए वो सब देख रहे हैं। अभी भी वक्त है, नमाज ना छोड़ो, तौबा को ना टालो, दिलों को जोड़ लो, मुआफी मांग लो। ए अल्लाह, हमें ईमान के साथ जीना और ईमान के साथ मरना नसीब फरमा। कब्र में तन्हा न छोड़ना, रोशनी और सुकून अता फरमा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, इसकी और उसके अपनों की कब्रें जन्नत के बागीचे बना दे। असली जिंदगी कब्र से शुरू होती है। आज जो जी रहे हो वो कल कब्र में काम आएगा। कब्र आ तो जन्नत का बागीचा होगी, आ जहन्नम का गड़ा। तो फैसला आज तुम पर है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो इस बड़ी दुनिया में, याद रखो ये चैनल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि और दिलों तक ये बात पहुंच सके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। तो बताएं, ये बातें सुनकर आपके दिल में क्या ख्यालात आए? आप आज से क्या एक चीज मुख्तलिफ करेंगे इस आखिरी सफर की तैयारी के लिए? मुझे आपके ख्यालात जानकर वाकई खुशी होगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।